Hello and welcome to my dear students. Students, in this video lecture, we are going to start our third unit, that is classification of elements and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. This is our third unit, classification of elements and periodicity in properties. So as the periodic table is concerned, right, periodic table, this periodic table is the most important concept in chemistry, both in principle as well as practice, right? The foundation of classification or periodic table is a great achievement for the chemist to explore deeper into the subject, right? Periodic table, it is a remarkable demonstration for the fact that the chemical elements are well organized and lie together in families, right? As we move further, there is a question, why do we need to classify elements, right? Why do we need to classify elements, right? This is a question. So if we talk about in 1800, this was the year, only 31 elements were known. Only 31 elements were known at that time, right? By 1865, the number of identified elements had more than doubled, right? Means 63 elements were known in the year 1865, right? And at present 118 elements are known and some of them are man-made. Okay, so with such a large number of elements, right, with such a large number of elements, it is difficult to study individually the chemistry of all these elements, right, and their innumerable compounds individually. Okay, to ease out this problem, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements in tabular form, right? So the classification of these elements give rise to a table which is known as periodic table. Periodic table, in which the elements with similar properties are grouped together, right? यहाँ तक बात समझ आई बच्चे? This was the introduction, right, about this chapter. Now we will move towards the developments in the periodic table, right? अब हम आपको developments बताएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स जो हैं हुई पीरियोडिक टेबल में. डेवलपमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, राइट? वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ही वाज लेवोजियर, LAVOSIER, Lavoisier. He classified elements
into metals and non-metals। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में, राइट। लेकिन ये क्लासिफिकेशन उतना फेमस नहीं हुआ, इससे सारे के सारे आंसर्स, सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए, राइट। सो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, ही वाज डोब्रिनर, DOBEREINER, डोब्रिनर्स। उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, थ्री एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया जिसे उसे नाम दिया ट्राइड, TRIAD। तो नाम रखा डोब्रिनर्स ट्राइड। डोब्रिनर, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। ये क्या थे? डोब्रिनर क्या थे? एक जर्मन केमिस्ट थे। ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, ओके। इन्होंने थ्री एलिमेंट्स के क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिन्हें उन्होंने क्या कहा? ट्राइड्स। तो पूरा नाम क्या रख दिया? डोब्रिनर ट्राइड्स। जैसे उन्होंने पहला ट्राइड जो बताया, जैसे लिथियम सिंबल Li होता है, सोडियम और पोटेशियम, राइट। के सिंबल सबको पता है। लिथियम का एटॉमिक जो वेट है दैट इज़ 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम 39। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो है फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप में, इस ट्राइड में, ये थर्ड एलिमेंट है, हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का क्या फाइंड आउट करेंगे? अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे या एवरेज फाइंड करेंगे। तो वो जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। मीन्स उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक वेट बताइए या एटॉमिक मास बताइए, वो कैलकुलेट किया फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का। तो फर्स्ट है 7 प्लस में थर्ड का 39 है, एवरेज मीन्स डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? 46 डिवाइड बाई में 2 इक्वल टू 23। तो ये जो 23 आया ये सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वलेंट आया। तो इसकी बेसिस पे उन्होंने 3 एलिमेंट्स के क्या बनाए? ग्रुप्स बनाए, जिन्हें उन्होंने ट्राइड कहा, राइट। तो क्या कहा उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बताया उन्होंने? स्टेटमेंट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, एवरेज भी बता सकते हैं, ARITHMETIC, अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट in a triad is equal to or nearly equal to the atomic mass
ऑफ सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इट मीन्स इन्होंने जो क्लासिफिकेशन बताया एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास बताया, राइट। मीन्स सिंपली जो है कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड थर्ड वन के एवरेज एटॉमिक मासेस के इक्वल होगा, राइट। तो जितने भी एलिमेंट्स इनके वक्त में जाने जाते थे, ये 1829 के आसपास की बात है। 1829 उस वक्त बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं पाए जाते थे, 30 के आसपास एलिमेंट्स जो है पाए जाते थे। उनका उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया, सब का नहीं बता पाए, राइट। बहुत सारे एलिमेंट्स का उन्होंने इस तरीके से ट्राइड बताया। जैसे सेकंड एग्जांपल में जैसे उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इसका ट्राइड बनाया। कैल्शियम का वी ऑल नो 40 एटॉमिक मास, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। इसे भी जब आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड का तो आएगा 40 प्लस में 137 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 88.5, दैट इज़ नियर अबाउट इसके ही इक्वल है। तो इक्वल भी आ सकता है, नियरली इक्वल भी आ सकता है, राइट। इसी तरीके से थर्ड ट्राइड जो उन्होंने बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, राइट। आप इनके एटॉमिक मास से याद रख सकते हैं। ब्रोमीन का 80 होता है एटॉमिक मास और आयोडीन का 127, फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ जो है सल्फ़र, सेलेनियम और टेलुरियम। एस होता है सल्फ़र, एस होता है सेलेनियम, टी होता है टेलुरियम। पीरियोडिक टेबल में ये नाम हमको मिलते हैं। फिफ्थ ट्राइड की अगर हम बात करें फास्फोरस, आर्सेनिक, एस होता है आर्सेनिक और एस बी होता है एंटीमोनी, ठीक है। ये कुछ लैटिन नेम्स की बेसिस पे सिंबल्स रखे होते हैं, ओके। तो इनको आप जो है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो डोब्रिनर क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, इनका लिमिटेशन क्या रहा, अब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशन और ड्रॉबैक वी कैन से लिमिटेशन। दिस ट्राइड वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, राइट। एप्लीकेबल ओनली फॉर certain elements, not applicable for transition elements, not applicable for transition elements। पढ़ेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। पढ़ना हमको ये नॉट एप्लीकेबल फॉर, this tride is not applicable for F block elements, F block elements, ये हम इसका लिमिटेशन बता सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है इंट्रोडक्शन बताया आपको कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, और जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उसमें हमने आपको डोब्रिनर ट्राइड के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है यहाँ से आगे बात करेंगे, ओके, थैंक यू।